नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नामसाई में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2 दिवसीय C20 समिट का किया उद्घाटन। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड सहित कई अन्य देशों के प्रतिनिधि C20 समिट में ले रहे हैं हिस्सा। गुवाहाटी में दूरदर्शन द्वारा आयोजित किया जा रहा है DD कॉन्क्लेव में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के वरिष्ठ नेता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति ले रहे हैं हिस्सा। रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट सत्र में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी सरकार के 9 की उपलब्धियां गिनाई। नेहरू युवा केंद्र ईटानगर द्वारा किया गया जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। अमृतकाल के पंचप्रण की थीम पर आयोजित किए गए युवा उत्सव में स्थानीय स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। युवा एवं खेल मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने कहा, युवा शक्ति है राष्ट्र को आगे ले जाने वाली ताकत। नामसाई में आज C20 यानी सिविल 20 समिट का उद्घाटन हुआ। C20 से संबंधित आधिकारिक समूह के तौर पर C20 सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक ऐसा मंच है जहां लोगों की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा रही है। C20 समिट में भारत के अलावा आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, कोस्टारिका, इक्वेडोर, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, अमेरिका और रूस सहित कई अन्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में अरुणाचल प्रदेश के सभी सामुदायिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज C20 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन भागीदारी और जन संवाद का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समावेशी और सतत विकास में सिविल सोसाइटी के महत्व को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में की जा रही पहलों के जरिए भारत एक साझा भविष्य बनाने के मिशन पर है। It is a home for around 26 major tribes and more than 100 sub-tribes. Our language, our dialect, the eating habit, the dress we wear, everything is very diverse here in Arunachal Pradesh, yet we live in a very harmony with each other. Arunachal Pradesh has been growing by leaps and bounds during the last few years. Our achievement in the field of economic growth, healthcare, education, nutrition, connectivity, environment protection, e-governance, sports, art and culture has been remarkable. It is seen today as the most improved state in infrastructure. The unparalleled progress which we have witnessed could not have been possible without the unwavering dedication of our civil society organization tirelessly working towards the historic development of our people. Indian philosophy of Vasudev Kutumbakam recognizes the importance of the community and collective action. It serves as a guiding principle to foster cooperation, collaboration and inclusive development. It compels us to move beyond self-interest and work together for greater common good. By recognizing our interdependence and interconnectedness, the government and civil society organization, the government of Arunachal Pradesh, as I mentioned, has been in a very, we always try to interact with our community-based organizations. So very recently we had an interaction with our community-based organizations where we have drawn a 21-point vision document between government of Arunachal and the CBOs, signifying our commitment towards our shared responsible and inclusive development. So to further deepen the relation between the government and all the communities here in Arunachal Pradesh, very recently I had the privilege to lead all the head of our community-based organizations to Gujarat, where we have seen the Statue of Unity and also the Sardar Sarovar Dam in Kevadia in Gujarat. And after that we had an interaction with the Honorable Chief Minister of Gujarat, and also our Honorable Prime Minister Shri Modi ji also interacted with the members of the community-based organizations, which ignited the renewed passion and deepened our collective resolve to steer Arunachal Pradesh as the growth engine of as growth engine in India's Amrit-Kaal. We all speak different dialects. We don't understand each other.
And we all have different culture, different food habit, and maybe we all follow different faith and religion. This is the example of diversity when we talk about Arunachal. Yet, when I say we live in perfect harmony, there is example, inclusion and mutual respect. So later in the evening, there's a dinner being hosted by our Deputy Chief Minister. There we have some cultural presentation. There you will see how diverse we are culturally and with food habit also. So when the India takes presidency, we all know the theme is Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is a family. And when we say that one earth, one family, one future, that itself talks about the inclusiveness, the inclusion and the mutual respect. And it doesn't only talk about the human being, it talks about the entire sentient being, which means even the plant, the microorganism, everyone who resides in this blue planet. नामसाई में आयोजित किए जा रहे C20 समिट में देश विदेश से आए सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों ने इस आयोजन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि C20 के मंच के जरिए उन्हें सिविल सोसाइटी से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का अवसर मिला है। I'm Bhagat Oinam. I am a professor of philosophy at JNU, New Delhi. This is a very good initiative that C20 has taken up, and the government machineries has fully geared itself, and lots of deliberation has been very, very meaningful, particularly the highlighting the issue of diversity. Need to celebrate diversity and not to homogenize. One dress fit for all cannot be the method of development. There must be different ways through which development should be seen according to need of the communities. From France. Yeah. So first we feel extremely welcome. Like we feel the love of all the people preparing for this event. We have been so well taken care when we came. And this event is truly, really enriching with all the people who are talking about this subject of mutual respect and diversity and inclusiveness. I'm the Salim Wase from Ethiopia. Just for past 2 years I'm in India. Just I know India because we share language, some Hindi, and also culture. So this event is G20 as ICC as, which means that it's very interesting. Just I couldn't visit like this place like Arunachal Pradesh previously. Right now it's a very interesting place. I liked it. Just I'm enjoying right now. असम की राजधानी गुवाहाटी में आज दूरदर्शन द्वारा दूरदर्शन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के वरिष्ठ नेता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नाम के सत्र में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण पूर्वोत्तर में पहले उग्रवाद की समस्या थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस छवि को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर उग्रवादी समूहों ने हथियार डाल दिए हैं, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल हुई है। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर की यात्रा पर आ रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता साबित होती है। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि अरुणाचल के किसी भी हिस्से में चीन की सेना ने कोई घुसपैठ नहीं की है। चाइनीज आर्मी घुस गया है और गांव बनाया है। अब ऐसे चीजें हैं, इसको कैसे आप समझाओ? अगर हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, वो तो कोई जादू तो नहीं है ना, घुसा है तो दिखाई देगा कहां है। इनको राहुल गांधी को भी और कांग्रेस के जो भी ये सब बयानबाजी करते हैं उनको भी कहा है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, खुद श्रीमान राहुल गांधी को भी कहा है कि आप मेरा साथ चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम राहुल गांधी क्या कहते हैं वो नहीं है, प्रॉब्लम उनके झूठ बोलने से हमारा आम आदमी सच मान लेता है, ये खराब बात है। क्योंकि
1959 में जिस जगह चाइनीज लोगों ने जो अभी गांव बनाया है, वो जगह 1959 में कब्जा कर लिया। 1962 में और बाकी जगह को इन्होंने हमला किया, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया। जो 62 से पहले जो जो जमीन पे उसका अतिक्रमण हुआ, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। वही एक गांव है जिसको एक बदमाश जो मीडिया वाले हैं उन्होंने वेबसाइट में उसको अपलोड कर दिया। बाद में लोगों ने उसको चलाने शुरू कर दिया। अब ये चालाकी को देखिए, ये चालाकी नहीं, ये बदमाशी है। पहले न्यूज चलाया, गलत न्यूज चलाया, उस न्यूज को और लोगों ने चलाया, फिर उसको कुछ नेता ने बात बोला और बाकी जो देश वाला उसको सुन के हमको पूछते हैं कि चाइना के अरुणाचल के अंदर में घुसा है क्या। आप कभी टेलीविजन वाले और बाकी कुछ लोग अगर आप लोग जा सकते हैं तो जहां हमारा बॉर्डर है, मैं तो जाता हूं, वहां जाकर के वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को पूछिए कि जो बॉर्डर कहां है और जहां आज बॉर्डर है वहां तक चीन ने कब्जा कर। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को नई ऊंचाइयों को हासिल करने में सक्षम बना दिया है। गुवाहाटी में रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट विषय पर आयोजित दूरदर्शन कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय को अपना 100% देने को कहा है। श्री सोनोवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकारें पूर्वोत्तर पर 60 वर्षों के अपने शासनकाल में इस क्षेत्र का विकास करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त प्रगति हुई है। के बारे में दुनिया की मानव समाज को जानकारी हासिल हुई है। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या शक्ति है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट का बायोडाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट का नेचुरल ब्यूटी, नॉर्थ ईस्ट का साइड, नॉर्थ ईस्ट की चाय, नॉर्थ ईस्ट का वन हॉर्न राइनो, ओसम असम। यस। सो मुझे लगता है कि जब इन चीजों के बारे में पीएम साहब ने हमें विशेष रूप से उत्साहित की है, इसके बाद पहली बार के लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन फिल्म फेयर अवार्ड कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते थे। फिल्म फेयर अवार्ड 1956 से हमेशा बॉम्बे में रहते थे, वो अवार्ड देने का फंक्शन हुए बॉम्बे में आयोजन किया जाता था। पहली बार के लिए वो गुवाहाटी आए। इससे साफ जाहिर होता है कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियलिटी के बारे में देश की जनता जिस हिसाब से उनकी आग्रह, उनकी इच्छा शक्ति व्यक्त की थी, तो इससे साफ जाहिर है कि अगले दिनों में हमारी जो शक्ति उसी के विश्व स्तर पर हम ले जाने में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि बीते 10 से 12 मई तक हुए ईटानगर बंद के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून अपुआपा के तहत हिरासत में लिए गए सभी 41 लोगों को रिहा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलती से जिस नाबालिग को अपुआपा के तहत गिरफ्तार किया था उसे भी पहले ही रिहा किया जा चुका है। अनलॉफुल एक्ट का अंदर में 41 आदमी का ही डिटेन किया हुआ था और आज सभी को छोड़ दिया। और अभी एक जो पासीघाट में था वो रास्ता पे है, अभी 1-2 घंटा में, आधा घंटा में पहुंच जाएगा होगा, उसको भी छोड़ देंगे। नहीं, वो शुरू का बात है। शुरू में उन लोगों को पता नहीं था कि वो माइनर है। जो माइनर है वो के पता चला तब वो हमें इंफॉर्मेशन दिया 19 को, तो मैं तुरंत सेम डे में उनको जुवेनाइल होम में भेज दिया पासीघाट। फिर जुवेनाइल होम से 24 को फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट है ये यूपिया में, वहाँ में प्रोडक्शन कर दिया था और वहाँ से रिलीज हो गया। नेहरू युवा केंद्र ईटानगर द्वारा आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। अमृतकाल के पंचप्रण की टीम पर आयोजित किए गए युवा उत्सव में स्थानीय स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के युवा एवं खेल मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र को आगे ले जाने वाली ताकत है। उन्होंने छात्रों को देशभक्ति बनने और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करने की सीख दी।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेटों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। प्रशिक्षु अधिकारियों की इस पासिंग परेड के साथ ही सेना को 374 नए अधिकारी मिल गए हैं। इनमें से 152 नियमित कोर्स के और 135 तकनीकी स्नातक कोर्स के हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेटों में से 332 कैडेट विभिन्न राज्यों के और 42 कैडेट मित्र देशों के हैं। सबसे अधिक 57 कैडेट उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 33 और उत्तराखंड के 24 कैडेट हैं। जनरल मनोज पांडे ने कैडेटों से कहा है कि आने वाले वर्षों में कैडेटों की ताकत दृढ़ निश्चय और संकल्प ही सेना की आधारशिला होगी, जिसके बूते सेना तिरंगे का गौरव कायम रख सकेगी। अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान देने के लिए पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी ने आज ईटानगर में अर्पण 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नानी लाजी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के 30 स्कूलों के छात्रों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सिटी ग्रुप जो 1997 से स्टार्ट हुआ था स्कूल के साथ, आज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। प्री नर्सरी से लेके पीएचडी तक हमारे पास सारे कोर्स हैं। तो सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में है, जिसमें पूरे ग्रुप में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट भी पढ़ते हैं और हमने सोचा कि जो बच्चों ने रिसेंटली एग्जाम्स में बहुत एक्सेल किया है उनको ऑनर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए। उसके तहत हमने ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम सिटी यूनिवर्सिटी ने अरुणाचल प्रदेश में किया, जिसमें आज 80+ स्टूडेंट्स को ऑनर किया गया, जिसमें टीचर्स भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे और हमारे चीफ गेस्ट नानी लाजे जी साहब थे, जो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के यहाँ के। बहुत अच्छा इवेंट गया। ऐसा इवेंट पूरे नॉर्थ ईस्ट में करेंगे सिटी यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों को और मोटिवेशन मिल सके। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन एवं परिवहन मंत्री नाकाप नालो ने शुक्रवार को अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में अटू लेयू हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने तागिन समुदाय के सम्मानित नेता रहे अटू लेयू की प्रतिमा का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नालो ने कहा कि क्लान पर आधारित समाज को सामाजिक हितों के अनुरूप काम करना होता है। उन्होंने तागिन समुदाय के बुद्धिजीवियों से समाज के हित में काम करने और समाज का नेतृत्व करने की अपील की। बाय बर्थ मैं हमेशा सोसाइटी का रहा हूँ, तो सोसाइटी होने का एक ये है कि सोसाइटी का एक अपना मीनिंग हो जाता है। जब फैमिली 2-4 होता है, आपका फैमिली होता है, तो फैमिली से निकल कर जब 100 और 1000 हो जाता है, तो उसका मीनिंग जो बदल के सोसाइटी बन जाता है। जैसे माँ पिताजी का 2 बच्चा है, एक लड़की है तो लड़की का नाम अलग हो जाता है, लड़की या लड़का है तो लड़का का नाम अलग हो जाता है। इस तरह जितना सोसाइटी माने जितना मेंबर्स बढ़ेगा, जितना हो सकता है लेयू और हम भाईता होगा, लेयू और हम एक ही खूनता होगा, लेकिन समाज इतना आगे बढ़ने के कारण एक आज सोसाइटी का रूप में हमें देखना पड़ रहा है। सोसाइटी जब सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, तो सोसाइटी को संभालना इतना आसान भी नहीं है। जो सोसाइटी को संभाल सकता है, सोसाइटी को आगे ले जा सकता है। खासकर आपका लेयू समाज का जो आज समाज को लेके ले जाने का कोशिश कर रहा है, जैसे डॉक्टर काई महाराज जी और तपे नीलिंग जी का जो प्रेसिडेंट अपने नेतृत्व में जो आज कर रहा है, आपका स्टेचू को देखे हमको इतना खुशी होता है कि आपका कितना सोच है और आपका रिसर्च कितना ताप है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।